So basically conversation जो है, I think हमने जो गपशप लगानी है वो आर्ट के इर्द-गिर्द ही लगाते हैं, whatever questions, whatever thoughts they are. अगर हम आर्ट के बारे में बात करते हैं तो I think it comes across as a very privileged thought process. इन लोगों को लगता है कि I think थोड़ा लगेगा douchey. Yeah. It has that, unless and until we're able to redefine what art is in the people's perspective. मुझे लगता है मसला मेजरली ये आ चुका हुआ है कि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ आर्ट है ना वो स्टिक करती है फ्रॉम दीज फिल्म्स एंड वेस्टर्न कल्चर में, और जो हमने घरों के अंदर देखा हुआ है जिस तरीके से होता है. So limited understanding of what art actually is and the formations that it takes and the possibilities that it holds. मुझे इस वक्त यही मसला लगता है. और मैं जब इसमें पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये भी समझ आई थी कि आर्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, that's being debated like for centuries and centuries. कोई सीन ही नहीं है कि लोग अग्री कर जाएं कि आर्ट की ये डेफिनेशन होती है और ये चल रहा होता है. अगर फड्डे कर रहे हैं इसके ऊपर इतने अरसे से, then why do we have a disdain towards our own definition for art? या हम आर्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, उसका जिस डब्बे में हमने बंद किया है हमें वही डब्बा नहीं पसंद, लेकिन वो डब्बा हमने क्रिएट किया अपनी परसेप्शन से. असल में तो वो चीज वो है ही नहीं. I think एक तो number one, in my head, I think art is pretty much anything that you consume. So even like TV shows or movies, जिसके ऊपर like people would look down upon, I think still qualify as art. But I think people have very strong reactions to what art is because generally you have a strong reaction to art. If it does not invoke a reaction in you, I don't think it's really worth anything having a conversation about, right? Whether it's a negative or positive thing, I think वो वही सीन होता है कि whatever is invoking like some sort of conversation या reaction that counts as art, probably in my. वो किस फॉर्म में हो सकता है? I think I agree with that. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लोगों का ये जो प्रिविलेज के साथ हमने आर्ट को कनेक्ट कर दिया है कि ये अमीरों की गेम है, वो आई कहाँ से? क्योंकि one of the most famous artists throughout history, गुरबे बेचारे जलील होके, खाने को नहीं था उन लोगों के पास, ना दवाई के लिए पैसे थे. आप बाक की बात कर लो, आप मोने की बात कर लो, आप डिकिंसन की बात कर लो, आप कैफ्का की बात कर लो, आप एडगर एलन पो की बात कर लो, मे बी मंटो एंड गालिब हमारे अपने जो लोग थे, इतना एपिक आर्टवर्क क्रिएट करके और इतनी ज्यादा चीजें मजे की बना के अमीरों ने जिन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया उनकी बुराई नहीं करते, हम कहते हैं नहीं आर्ट प्रिविलेज के साथ कनेक्टेड है. व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? Okay, I think obviously because ये वही वाला situation है कि you know who is like the keeper of all of this stuff, who drives the conversation, who decides what art is. So all of these taste makers and curators and stuff. और privilege का वही होता है ना, privilege is, I think essentially in my head privilege का ये होता है कि when you don't have to worry about income or like how food is going to get on your table, या आपका बिजली का बिल किसने देना है, या आपका AC आज चल सकता है या नहीं चल सकता. Like for example, like the school I went to was like super highbrow, super rich kids everywhere, and just sort of the things that like they would buy or consume or eat or talk about, they were like so alien to me. But obviously I picked up that language just because I was surrounded by those people, right? It's not, so the thing is, it's not something ke if people know about like the types of pasta ya cacio de pepe and all of this stuff, it's like, you know, cacio e pepe, cacio de pepe, exactly. So you know, these things are, this is language you pick up only agar aap ek certain level of society ya education ke saath you're associated, right? So art is not accessible to everyone, so that's why I think it's fair to connect it to privilege. यार ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग तुम्हारा पॉइंट लगा कि अगर हमें आर्ट के बारे में वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, लैंग्वेज नहीं एग्जिस्ट करती, इर्द गिर्द के लोग बात नहीं कर रहे, तो क्या आर्ट फिर भी टेक प्लेस करता है कि नहीं करता? मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एनीथिंग दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग can be contributed to a function of art. चाहे वो आपकी औलाद का सजना दजना हो, उसको किसी तरीके से पालना हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई डायनामिक्स हो, चाहे अपने घर को डिजाइन करना हो, अपनी चीजों को चलाना हो, दफ्तर जाने के तरीके और अपने काम करने की एग्जीक्यूशन, या लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं. I feel like all of this which adds value to our lives is a form of art. But
वो जो वेस्टर्न अप्रोच है या फिर उसका जो मैस इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन्स के ऊपर, कि हम टिश टॉश लेडीज को और लोगों को देखते हैं कि वो म्यूजियम्स एंड $300 मिलियन की पेंटिंग, और वो एक लाइन बनाई थी तो वो इतने हजारों की बिक गई हमारी, आई थिंक उससे थोड़ी सी सो व्हेन वी गेट पिक्ड ऑफ, हाँ, जब हम इन डब्बों से गुस्से हो जाते हैं ना, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फॉलोइंग इन कि हम खुद को डिस्कनेक्ट कर देते हैं उस कॉन्सेप्ट से, जिसका नुकसान फिर हमें होना शुरू हो जाता है। अगर मैंने कहीं देखा कि यार ये गैलरीज और ये सारा अमीरों का काम है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को दूर कर लिया, और मैंने अपनी जिंदगी में जो छोटे छोटे आर्ट के फॉर्म्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, व्हिच मेक लाइफ वर्थ लिविंग, मैंने उनको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया और कहा ये आर्ट नहीं होता, ये तो कुछ और चीज है, एंड आई डोंट हैव अ डेफिनेशन फॉर दिस, व्हिच आई फाइंड रियली इंटरेस्टिंग कि अगर लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या आर्ट एग्जिस्ट फिर भी करेगा, एंड वुड दैट स्टिल लाइफ बी वर्थ लिविंग, या फिर आप यही कहते रहोगे नहीं गंद है और ये बकवास है और मुश्किल है सिर्फ और कुछ अच्छा नहीं होता और ये ऐसे ही चलता रहेगा? You know, there's like this really, like it's a meme which I always see floating around. Okay, you know, quarantine where everybody's turned into like an artist or a baker or a writer or this or that. And this is where that whole idea comes in, that art is just restricted to a certain amount of people, and how dare you try to do anything. So if you're not able to see things like that, if you're like, oh, you know, I baked something, but people are like, so, or if you paint something and they're like, acha to, like, you know, this isn't like, why do you need a qualification to be an artist, right? Like, I think that is the worst thing, and that's what jo hame, like you were saying, you dabbo mein band karke, and you start thinking this thing is gone, because you get very irritated ki, you know, who does this person think they are, and this is not art, everything is not art. Isi tarah, even, you know, when Instagram वगैरह started and people are so against like these influencers who are like creating content, and a lot of people are like, this is not a real job and this is not a real profession, या ये तो असल में कोई काम करते ही नहीं है, because the way that people have controlled content development, like if you look at TV or magazines or books and stuff, or publishing houses, of course it's not in the interest to think it's possible for people to independently make things, right? ये मतलब ये क्यों कर सकते हैं? So they bring that whole thing down, which I think is, इसीलिए हमें लगता है that's why we don't give value to the things we're doing. People have associated art with a lot of personal pain, ठीक है, which I think is obviously one way of romanticizing it, right? So like their mental illnesses or their poverty, all of these things, which also is like a super problematic thing. Very few people enjoy suffering or they look forward to it. उसके लिए phrases हैं, they're called like sadists or, you know, masochists. Like there's nothing like this person is super well adjusted and they're creating art. I think this is also probably what keeps people away from it. आपको feeling होती है कि, you know, I'm pretty like, okay, my parents are together and my family is fine and I have money, so how could I produce something which is of any value? Because we've associated value with horrific circumstances and situations of artists. This is not just us, by the way. मैं अभी कल परसों एक पॉडकास्ट सुन रहा था. There was this lady who's a writer, और वो explain करती थी कि she stuck with alcoholism for the longest of time because she thought कि जब मैं alcoholism से निकल जाऊंगी तो वो जो पेन और सफरिंग है वो मेरी राइटिंग में से निकल जाएगी और मैं उतनी ग्रेटनेस नहीं अचीव कर पाऊंगी अपनी जिंदगी के अंदर. ये जो पेन है यही मुझे लेके आता है. So that's a fantastic point. It is true. Yes, the neurological impact. So interestingly enough, हम लोगों ने जब ये एक्सपीरियंस देखना शुरू किया तो आपकी ब्रेन जो होती है वो एक क्रेजी एक्सपीरियंस में से गुजरती है ना. आपके बाप ने कभी आपको वो एक्सप्लेन किया हुआ लफ्जों के अंदर, वही लैंग्वेज वाली बात कि आपकी लैंग्वेज में नहीं होता वो एक्सपीरियंस और उसको आप डिफाइन नहीं कर पाते. तो मोस्टली आर्टिस्ट जो होते हैं उन्होंने तब ही क्रिएट किया वो आर्ट फॉर्म सो दैट दे कुड कनेक्ट विद द ऑडियंस और सोसाइटी इन जनरल एंड से कि यार ये मेरा एक एक्सपीरियंस था. Do you see it in this light as well? Do you see it in this formation? तो जब शुरू में बात होती है ना, जब हम आर्ट की बात करते हैं तो इसके 3 आर्चेस होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है. 3 आर्चेस जिसको आर्ट को जिसके अंडर प्लेस किया जाता है. एक होता है रिप्रेजेंटेशन, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है फॉर्म. ठीक है, सबसे पहले जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्लेटो के टाइम के अंदर उसने कहा था कि यार आर्ट जो होता है ना वो इस बात पे हम उसकी क्वालिटी को जज करेंगे कि जो ओरिजिनल इमेज थी या ओरिजिनल जो चीज थी उससे वो कितनी मिलती है. तो वो थी रिप्रेजेंटेशन कि हमने एक और चीज को रिप्रेजेंट कर दिया और हमने शोकेस कर दिया तो ये ओरिजिनल से इतनी मिलती है तो बेहतरीन, इसको इतना हम आउट ऑफ 10 स्कोर देते हैं. रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है एक्सप्रेशन वाला फंक्शन. ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्या होता है कि आर्ट जो होता है उसका फिर आइडिया बन जाता है कि अब आपने इमोशनल रिस्पॉन्स निकलवाना.
जिससे तुमने कहा शुरू के अंदर कि मैं जब पेंटिंग को देखूं मैं कहूं होली शिट यार, ये कलर्स इस तरीके से लॉक इन हुए हैं, ये कितनी फर्क चीज है, ये कितनी अजीब सी हो रही है। एंड द इंटरेस्टिंग बिट इज कि जब हमने ब्रेन के ऊपर वो चीजें कनेक्ट करके देखी साइंटिस्ट ने और इन्होंने टेस्ट किया, तो पता चला कि जो आर्टिस्ट जिस ब्रेन फॉर्म में होता है या जिस स्टेट में होता है जब वो आर्ट क्रिएट कर रहा होता है, तो देयर इज अ वेरी बिग सिमिलैरिटी कि जो व्यूअर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है ना, उसके दिमाग में भी वही कनेक्शंस बिल्ड हो रहे होते हैं, क्योंकि वो विजुअल कलर्स वही देख रहा होता है, वो सेटिंग उसी तरह की देख रहा होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, बट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, तो मेरे नए ब्रेन कनेक्शंस बन जाते हैं। So that's where we get new emotional charges कि oh यार this makes me feel in a certain way. And फिर हमारी आखिरी बात आ जाती है the form of art. And form of art is everything that we talk about nowadays कि यार इसमें balance क्या है, contour क्या है, colors क्या है, oh ये कैसा है, ये कैसा, and there's more of a modern perspective towards it, right? So in that sense, जब लोगों ने create करना शुरू किया ये art, उनके दिमाग के अंदर images थी कि यार ये एक experience है जो मैं नहीं explain कर पा रहा, so do you connect with this? Do you look at this? तो मिनाहिल ने उस पेंटिंग को देखा, उस पेन को देखा, उस किताब को पढ़ा या उस चीज को देखा और कहा कि हाँ यार, I see such similarities and I've seen this somewhere in society. So the third and fourth, one of the most interesting connections comes out of it. कि art का जो representation है या जो भी आपके सामने आती है, it has a lot to do with the collective memory that society holds. कि लोगों ने collectively क्या experience किया है और उसमें क्या-क्या similarities हैं। तो हम जो सेंटर पीसेस पे रखते हैं ना, वो फिर लोग उसको देख के सिमिलर थॉट्स कनेक्ट करते हैं और उसके इर्द-गिर्द कल्चर्स बिल्ड करते हैं और चीजें होती हैं। So my point I think at this point would be that there's an insane amount of learning that comes out of art, and उसकी non recognition की वजह से I think we've limited ourselves to that as well. Agreed. I think वही बात जो बिल्कुल हमने शुरू में की थी उसी के ऊपर we're also ending and circling back कि हमने क्यों अपना आप को इतना restrict किया हुआ है on what we qualify as art, and even the things we produce on an individual daily basis, why don't we give those the kind of respect or position that they deserve if you're talking like just from a creation point of view. So, यार लोगों के हाथ में जब हम कंट्रोल प्लेस इन कर देते हैं ना कि डिफाइन जो है किसी और ने किया है, किसी से मैंने जिससे बात सुनी थी वो बंदा नहीं मुझे पसंद था इसीलिए ये बात भी गलत है। So that's one of the boxes that art falls under as well. कि हमने इसकी definition किस तरीके से limit कर दिया, because of course there's an Islamic perspective to it, there's a Christian perspective to it, there's all kinds of religious perspectives that fall into art and how it is talked about. हमारे कल्चर के अंदर आपने देखा है कि हमारा जो सबसे फेमस फॉर्म ऑफ आर्ट है थ्रू आउट पाकिस्तान इज truck art, right? Exactly. So insane truck art, and I feel that comes out of extreme forms of udasi and parishani and the need to see so much color in your life. Yaar, I need to be surrounded where my brain needs to be activated on another level, क्योंकि everything seems gray and brown, क्योंकि मिनाहिल और वलीद ने जो सफर करना है आधे घंटे में वो मैंने करना है 10.5 घंटे में। तो उसकी वजह से मुझे अपने इर्द गिर्द एक ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए और लोगों को मैंने पुल इन करना है, एंड आई वांट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। सो ऑल ऑफ दिस पेन दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग, it's only about collaborating and connecting it and understanding कि इसकी क्या value है। So maybe we can create art in better forms and talk about it in better forms। कि artists जो होते हैं जिनको हम बड़ा grandeur provide करते हैं कि बड़े great लोग थे और ये बड़ी great crazy personalities थी, they were pretty pathetic human beings to come across as well, like really unlikable personalities जिनके साथ लोगों की नई दोस्तियां होती थी और उनको गुस्सा चढ़ जाता था। तो मुझे एक छोटी सी वो बात याद आती है, बीथोवन की एक सिम्फनी है जो उसने बनाई थी फॉर अ गर्ल दैट ही लाइक्ड, बट इंटरेस्टिंगली उसको लड़की पसंद आई, उसने उसके लिए वो ट्यून बनाई, वो इतनी आसान थी कि लड़की ने कहा ओह मैं भी बजा सकती हूँ। उसने कहा देखा मैं तुम्हारा टीचर बन जाता हूँ और देखो इतने मजे के तरीके से तुम्हें सिखा भी दूंगा। सो ही डिजाइन्ड इट सो ही कुड इम्प्रेस हर। अगले दिन द गर्ल केम इन विद हर फियांसे एंड उसने इंट्रोड्यूस किया बीथोवन को कि यार ये मेरा फियांसे है तो मिल लो। उसको इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने जो सेकंड पार्ट ऑफ दैट सिम्फनी था वो इतना मुश्किल कर दिया कि कोई भी उसके अलावा बजा नहीं सकता था उसको, एंड द लेडी गेव अप ऑन प्लेइंग पियानो कि यार ये इतना मुश्किल काम है।
सो पेटीनेस की इंतहा भी होती है आर्टिस्ट के अंदर, और इसमें कोई आउट ऑफ रीच नहीं होता कि यार ये कोई स्पेशल इंसान है जो ऊपर से उतरा है और उसका एक्सपीरियंस है. I think it's pretty much in reach, and we just need to get out of that box that we keep talking about, which would make sense. Agreed. Thank you once again, Mene. Thank you so much for this discussion. I'm beyond grateful for this. This was enlightening for me as well. Bhai kuch banayega bhi. And I also want a tour of your house as well whenever we get the chance.